اردو ناول ہمالیہ قسط نمبر 105 بائے اردو داستان۔ ذہن پر کچھ غنودگی چھا گئی تھی۔ یہ غنودگی آہستہ آہستہ بڑی ہوتی گئی اور شاید نعمان خان کو نیند آ گئی۔ بہر طور جب آنکھ کھلی تو کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ اسے وقت کا کوئی احساس نہ تھا۔ چند لمحات اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ دروازہ شاید باہر سے بند تھا۔ اس نے سوچا کہ اٹھ کر دروازے سے زور آزمائی کرے۔ یہاں قید رہنے کے لیے تو نہیں آیا تھا۔ ویسے یہ صورتحال ذرا توقع کے خلاف تھی، جیسا کہ اسے بتایا گیا تھا کہ ولیشہ کا باشندہ ہونے کی حیثیت سے اسے ولیشہ تک پہنچنے میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بس کوئی ضمنی سی کاروائی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں ان لوگوں کا رویہ اسے کافی سخت محسوس ہو رہا تھا۔ بہرطور ابھی اس نے دروازے پر زور آزمائی کی ابتدا بھی نہیں کی تھی کہ باہر بھاری جوتوں کی آواز سنائی دی۔ وہ جلدی سے دروازے کے پاس سے ہٹ گیا۔ اس نے آنے والے کا انتظار کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ چنانچہ گوشے میں لیٹ کر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ چند لمحات کے بعد دروازہ کھلا۔ نعمان خان نے نیما آنکھوں سے ایک ٹارچ کی روشنی کمرے میں پھیلتی محسوس کی اور پھر وہ نعمان خان پر آ کر رک گئی۔ اسے دو باوردی سپاہی اپنے قریبی نظر آئے تھے۔ ان کے پاس شاید اس وقت رائفلیں نہیں تھی۔ ایک سپاہی نے اسے سوتا پا کر اپنی زبان میں کچھ گالیاں دی جنہیں نعمان خان نے صاف سنا تھا۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ اس موم نے اسے بالکل ہی چوہا بنا کر رکھ دیا تھا۔ ایک سپاہی جو گالیاں بک رہا تھا اس کی طرف آیا اور اس نے آتے ہی نعمان خان کے پیٹ میں ٹھوکر مارنے کے ارادے سے پاؤں اٹھائے ہی تھا کہ اسے لپک کر اس کی ٹانگ پکڑ لی اور اسے موڑ کر اس زور کا جھٹکا دیا کہ وہ منہ کے بل ایک جانب گرا۔ نعمان خان دوسرے لمحے اس پر پل پڑا اور دو ہی گھونسوں میں اس نے سپاہی کی طبیعت صاف کر دی۔ اپنے ساتھی کو پیٹتے دیکھ کر ٹارچ والا سپاہی بھی اس پر حملہ ہو گیا تھا، لیکن نعمان کی لات کی ایک ہی ضرب میں دور لڑکھنیاں کھاتا ہوا گرا۔ اس کے منہ سے چیخ نکلی اور ٹارچ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ نعمان خان نے فوراً ٹارچ پر قبضہ کیا اور اسے بند کر دیا۔ دونوں سپاہی بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ چند لمحوں کے اندر اندر اس نے اپنے حواس درست کیے، کمرے کا دروازہ بند کیا اور ٹارچ روشن کر کے سپاہیوں کا جائزہ لینے لگا۔ پھر ٹارچ بجھا کر دروازہ کھولا اور دبے پاؤں کمرے سے باہر نکل آیا۔ راہداری تاریک و سنسان پڑی ہوئی تھی۔ وہ ایک گوشے میں کھڑا ہو کر سوچنے لگا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی جائے یا پھر ان لوگوں کا انتظار کیا جائے۔ فرار ہونے کی شکل میں اسے ایک بار پھر مسلسل مصیبت میں گرفتار ہونا پڑے گا۔ دوسری شکل یہ تھی کہ وہ انتظار کر دیکھے کہ اس کے ساتھ وہ زیادہ سے زیادہ کیا سلوک کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی اس بندرگاہ کے بارے میں اس سے احساس ہو چکا تھا کہ وہ زیادہ ہی وسیع نہیں اور کم از کم یہاں رہ کر ان لوگوں کی نگاہوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ وہ یقیناً اسے ڈھونڈ نکالیں گے اور پھر اسے یقین ہو جائے گا کہ وہ جاسوس ہے۔ اس جرم میں اسے گولی سے بھی اڑایا جا سکتا ہے۔ پہلی بار نعمان خان کو احساس ہو کہ اس نے اپنے تربیت کنندگان پر بھروسہ کر کے غلطی کی ہے۔ اپنے طور پر بھی اسے کچھ سوچنا سمجھنا چاہیے تھا۔ ضروری تو نہیں کہ سارے معاملات ان کی مرضی کے مطابق ہی ہوں۔ اس طرح ان سپاہیوں سے لڑ کر بھی اس نے غلطی کی تھی۔ ابھی وہ اس حماقت کی تلافی کی تدابیر سوچ رہا تھا کہ سامنے سے 4-5 سپاہی آتے نظر آئے۔ اس نے موقع غنیمت جانا اور جلدی سے ٹارچ پھینک کر وہیں لیٹ گیا اور یوں کرانے لگا جیسے دم لبوں پر ہے۔ اس کی آواز سن کر وہ دوڑتے ہوئے آئے اور اس کے گرد کھڑے ہو گئے۔ پھر ان میں سے ایک نے اپنی ٹارچ روشن کی، نعمان خان کا چہرہ دیکھا اور اپنی زبان میں اپنے ساتھی سے کچھ کہنے لگا۔ نعمان خان اس کے الفاظ نہیں سن سکا، لیکن وہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ سب باری باری اس کا معائنہ کر رہے ہیں۔ نعمان خان نے کرا کر کربٹ بدلی اور اشارے سے ان سے پانی مانگا۔ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کچھ دیر آپس میں سلام مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے نعمان خان کے ہاتھ منہ پکڑے اور 3-4 برآمدے سے اور راہداریاں عبور کرتے ہوئے ایک وسیع اور اس کمرے میں داخل ہو گئے۔ یہاں فوجی وردیاں پہنے ہوئے کچھ آفیسر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے آفیسر کے سامنے نعمان خان کو فرش پر پھینک دیا۔ سپاہیوں نے ان سے کچھ کہا اور کمرے سے باہر نکل گئے، لیکن نعمان خان نے بے ہوش بننے میں آفت محسوس کی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ ان میں سے ایک شخص اس کے قریب آ کر اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے اپنے ساتھی سے آہستہ سے کچھ کہا۔ یہ الفاظ بھی نعمان خان کی سمجھ میں نہیں آئے۔ دونوں ہنسنے لگے۔ چند لمحوں بعد یکایک پانی کا ایک بھرا ہوا جگ نعمان خان کے سر پر ڈیل دیا گیا اور اس نے آنکھیں کھول دی۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس انداز میں جیسے اس کے بدن میں جان ہی نہ ہو۔ دونوں نے مل کر اسے اٹھایا اور ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ نعمان خان نے اپنے طور پر بھرپور کوشش کر رہا تھا کہ اپنی فطرت کے خلاف لومڑی کسی مکاری سے کام لے کر ان لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرے۔ حالانکہ جی تو یہ چاہتا تھا کہ وہ مقابل سے بھیڑ جائے اور خود بھی مر جائے یا اسے ہلاک کر دے۔ اس بے عزتی کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، لیکن جو مہم اس کے سپرد کی گئی تھی اور اسے جس شکل میں یہاں بھیجا گیا تھا، اس کے تحت مکاری بے حد ضروری تھی۔ 15 دن تک سکارو نے اسے یہی تربیت دی تھی کہ خطرناک سے خطرناک حالات میں اپنی شخصیت کو بھول کر صرف اسی طرح عمل کیا جائے جس طرح وقت کی ضرورت ہو، اور وقت کی اس ضرورت نے نعمان خان کا دل خون خون کر دیا تھا۔ وہ زندگی کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا کہ وہ اس کی ذات پر حاوی ہو جائے۔ یہ لوگ جو کچھ کر رہے تھے وہ نعمان خان کی برداشت سے باہر تھا، لیکن وہ آخری لمحات تک اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہتا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور اٹھنے کی کوشش کی۔ کمرے میں صرف 2 موم بتیاں جل رہی تھیں، جن کی کانپتی ہوئی زرد روشنی میں اس نے ان 2 آدمیوں کا جائزہ لیا۔ ایک دبلا پتلا اور طویل قامت تھا جس کی آنکھیں چھوٹی تھی اور بھیجے ہوئے پتلے لب ظاہر کر رہے تھے کہ بہت درجہ شفاف شخص ہے۔ دوسرا اس سے مختلف تھا، پستہ قامت اور موٹے بدن کا مالک، چوڑا چکلا چہرہ، بڑی بڑی باہر کو ابھری ہوئی سرخ آنکھیں، تھوڑی کے نیچے دھڑکتا ہوا گوشت اور چھوٹے چھوٹے بازو۔ وہ اس وقت شاید شراب کے نشے میں دھوت تھا۔ ان کے وردیوں سے اندازہ کرنا دشوار نہیں تھا کہ وہ دونوں میجر کا عہدہ رکھتے ہیں۔ لمبے آدمی نے نرم لہجے میں پوچھ گچھ کا آغاز کر دیا۔ وہ روانی سے ولیشن زبان بول سکتا تھا۔ اس سے صرف 5 سوال نعمان خان سے پوچھے۔ تم کون ہو؟ تمہارا اصل نام کیا ہے؟ کہاں کہاں رہے
रहे, चेहरे और सर पर जख्मों के निशानात कैसे हैं, रात के वक्त समंदर में कश्ती लेकर किस मकसद से घूम रहे थे। नुमान खान ने तफसील से वही रटे रटाए जवाब पेश कर दिए, लेकिन दराज कद के लबों पर फैली मुस्कुराहट से जाहिर होता था कि वो इनसे मुतमईन नहीं। चंद लम्हात की खामोश रहने के बाद उसने कहा, तुम्हें ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि तुम यहाँ जासूसी की गर्ज से दाखिल हुए हो। जनाब, अपने वतन में कोई जासूसी नहीं करता। मैं मुकामी बाशिंदा हूँ और मेरे आबा-ओ-अजदाद सदियों से इस मुल्क को अपना वतन बनाए हुए हैं। मेरा जुर्म सिर्फ इतना सा है कि मैं बेल्जियम से अपने वतन वापस आया हूँ। ये कश्ती मैंने बमुश्किल तमाम हासिल की थी। इसके अलावा मेरे पास कोई काबिल एतराज चीज नहीं। मैं तो अपनी जमीन पर आया हूँ। यह मेरी काफी उसी जायदाद है जो मेरे लिए तरक्की की तरफ पर महफूज कर दी गई है। मोटा और मुकरू सूरत मेजर, जो अब तक खामोशी से तमाम बातें सुन रहा था, यकायक हलक फाड़ कर चीखा, तुम इसकी बकवास पर यकीन न करना मेजर, ये कुछ नहीं बताएगा। इसकी जुबान खुलवाने के लिए वही तरीके इख्तियार करना पड़ेंगे जो जुबान खोलने के लिए मुफीद साबित होते हैं। वो अपनी जगह से उठा और किसी भूखे दरिंदे के तो नुमान खान पर गिर पड़ा। इसने लातों, घोंसों और थप्पड़ों से इस बुरी तरह नुमान खान की पिटाई की कि उसे छठी का दूध याद आ गया। जब उन्होंने देखा कि वो अदमुआ हो गया है तो वो इसे इसी कमरे में छोड़कर चले गए। नुमान खान सारी रात एक नाकाबिले बर्दाश्त अजाब में गिरफ्तार रहा। इन लोगों ने जिस तरह इसको मारा था, इससे इसके बदन में जगह जगह दर्द हो रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा अजियतनाक ये एहसास था कि वो खामोशी से मार खाता रहा था। चुनांचे उसने ज़हन को पुरस्कुन रखने की कोशिश की और सोचने लगा कि जब उन्हें पता चलेगा कि उसने उनके सिपाहियों की ठुकाई भी किया तो शायद ये लोग उसे जान से ही मार डालें। इस ज़हनी इंतशार से बचने का एक ही तरीका था कि सोने की कोशिश की जाए। जिस तरह भी मुमकिन हो नींद आंखों में आ जाए तो बेहतर है। वो इस कोशिश में मसरूफ हो गया और थोड़ी देर के बाद नींद की देवी इस पर मेहरबान हो गई। फिर उसकी आंख उस वक्त खुली जब उसने दो ऑफिसरों को अपने करीब खड़े हुए देखा। उनमें से एक ने अपने बूट की नोक नुमान खान की पसली में मारते हुए कहा, उठो, बहुत ऐश कर चुके, अब जरा कुछ काम भी करके दिखाओ वरना मौत तुमसे ज्यादा दूर नहीं होगी। नुमान खान को यकीन हो गया कि ये मौत के फरिश्ते ही मालूम होते हैं। चुनाचे वो खामोशी से खड़ा हो गया। इसका जहन अभी तक कोई फैसला नहीं कर पाया था, ताहम अपने पहले फैसले के तहत वो खामोश रहना चाहता था। वो लोग उसे साथ लिए बाहर आ गए। बाहर एक जीप खड़ी हुई थी। चुनाचे नुमान खान को इसमें बिठाकर किसी तरफ ले जाया जाने लगा। जिस जगह उसे ले जाया गया वो बाकायदा जेल थी जिसमें सैकड़ों मुकामी बाशिंदे कैद थे। नुमान खान को एक अलग कोठरी में बंद कर दिया गया जहाँ से वो इन मजलूमों की आवाजें बखूबी सुन सकता था जिनको दिन रात अजियत दी जाती थी। 2 रोज तक वो इस कोठरी में भूखा प्यासा बंद रहा। तीसरे रोज जब इसकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब देती जा रही थी तो दरवाजा खुला और एक बावर्दी मुसल्ला सिपाही ने उसे बाहर निकलने का इशारा किया। थोड़ी देर के बाद उसे कमरा तफ्तीश में 3 ऑफिसरों के सामने पेश किया गया। इनमें 2 वही थे जो उसे यहाँ लेकर आए थे। उन्होंने विलेशन जुबान में सवालात का आगाज किया। इनके हर सवाल में लफ्ज जासूसी शामिल था। चुनांचे नुमान खान ने अफसुर्दा लहजे में कहा, जनाबे वाला, मैं जासूस नहीं हूँ। बेल्जियम में भी एक बार मुझे जासूस समझा गया था। हालांकि मैं अपने वतन का वफादार, अपने शाह का वफादार और शरीफ शहरी हूँ। आप मेरे खानदानी हालात मेरे अपने गाँव से मालूम कर सकते हैं। अगर ये हालात गलत साबित हों तो फिर जो आप मुनासिब समझे मेरे साथ सलूक करें। दफतन एक ऑफिसर ने आगे बढ़कर एक जोरदार घोंसा नुमान खान के मुंह पर रसीद किया और नुमान खान पीछे हट गया। दूसरे ऑफिसर ने इसके पेट में लात मारकर रही सही कसर पूरी कर दी। उसके कानों में ऑफिसर के चीखने की आवाजें आ रही थी, अब भी पता चल जाएगा तुम कौन हो, हम तुम्हारे लिए मुनासिब बंदोबस्त कर देते हैं। बेहतर है कि इसे इसके साथियों के पास ही पहुंचा दो, हम इसके लिए वाकई कोई मुनासिब बंदोबस्त करेंगे, उस शख्स ने कहा जब तक खामोश रहा था। दूसरे लोग इसकी बात पर गौर करने लगे। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, इससे पूछगछ का सिलसिला थोड़ी देर के लिए मुलतवी किया जाता है। चुनाचे नुमान खान की जान वक्ती तौर पर बच गई। उसे एक ऐसे अहाते में भेज दिया गया जब बहुत से बदनशीब विलेशन बाशिंदे बैठे हुए थे। दरवाजे पर मुसल्ला फौजी पहरे दे रहे थे। एक ऑफिसर कोने में मेज लगाए कुछ टाइप कर रहा था। इन लोगों की हालत देखकर नुमान खान को रोमन अहद के वो गुलाम याद आ गए जो रोमनों के बहरी जहाजों को चलाया करते थे। उनकी हालत मुर्दों से भी बदतर थी। फाकों के बायस उनके जिस्मों की एक एक हड्डी बआसानी गिनी जा सकती थी। अक्सर बुरी तरह जख्मी और अपाहज थे। किसी का हाथ टूटा हुआ था, किसी की टांग, किसी की नाक टूटी हुई थी तो किसी के चेहरे पर ऐसे घाव जैसे कि दरिंदों ने मुंह नोचा हो। बाज मजलूमों की खोपड़ियों से इस वक्त भी लहू टपक रहा था। इनकी हालत देखते नुमान खान अपनी तकलीफ भूल कर अपनी आंखें बंद कर ली। यकायक उसे एक आवाज सुनाई दी। मेज पर बैठा हुआ ऑफिसर कह रहा था, ये तुम शहंशाहों की तरह यहाँ बैठकर वक्त मत गुजारो, उन लोगों के साथ जाकर बैठो, तुम्हें थोड़ा सा काम सौंपा जाएगा। मैं तैयार हूँ। नुमान खान ने आहिस्ता से जवाब दे आगे बढ़कर उन लोगों के करीब पहुंच गया। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। ये सूरत हाल तो कुछ उल्टी ही नजर आ रही थी। ताहम अपने तौर पर आखिर वक्त तक मुहतात रहना चाहता था और इस तरबियत के मुताबिक काम करने का ख्वाहिशमंद था जो उसे दी गई थी। इसका ज़हन सही तौर पर काम नहीं कर रहा था। बहर तौर पर इनके दरमियान जाकर बैठ गया। बहुत से लोग गर्दनें झुकाए बैठे हुए थे। किसी ने उससे बात करने की कोशिश नहीं की। फिर उस ऑफिसर ने जो मेज पर बैठा कुछ लिख रहा था उसे नजदीक बुलाया और नुमान खान उठकर उसके करीब पहुंच गया। ऑफिसर गहरी निगाहों से उसका जायजा ले रहा था। फिर इसने इधर उधर देखा और आहिस्ता से नुमान खान से बोला कि तुमने जो कुछ इन लोगों से कहा वो बिल्कुल सच है। जी जनाब, मैं सच अर्ज कर रहा हूँ। अगर आप मेरे बारे में मालूमात हासिल करना चाहें तो मेरा आबाई गाँव यहाँ से दूर नहीं। अगर मेरी दी हुई इत्तलात गलत साबित हो तो मुझे बिला तकल्लुफ गोली मार दी जाए। लेकिन बेल्जियम से वापसी के वक्त तुम्हारे जहन में ये बात नहीं थी कि
तुम्हारे इलाके में बगावत हो रही है और यहाँ 2 बड़े मुल्कों की चपकलश काम कर रही है। क्या तुम्हें ये एहसास नहीं था कि ये वक्त वतन वापस आने के लिए मुनासिब नहीं है? बस मैं क्या अर्ज कर सकता हूँ जनाब, अपने वतन पहुँचने का ख्वाहिशमंद था। तवील अरसे के बाद वापसी हुई है। मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं इस तरह मुसीबत में गिरफ्तार हो जाऊंगा। वतन की आज़ादी के बारे में क्या ख्याल रखते हो? अफसोस जनाब, तवील अरसे से यहाँ से दूर हूँ और हालात से नावाकिफ। हालात? ऑफिसर ने गहरी सांस लेकर कहा, हालात जो कुछ है तुम देख चुके हो। ये वो तमाम मलेशियन बाशिंदे हैं जो अपने वतन को इस फिरौन के दस्तक से आज़ाद कराने की कोशिश है जिसने इन पर जिंदगी तंग कर दी है और एक मुल्क के हाथों खेल रहा है। ऑफिसर की बात सुनकर नुमान खान शशदर रह गया। एक लम्हे के लिए उसका जहन चकराया, लेकिन दूसरे लम्हे वो फिर मुस्तैद हो गया। उसने अंदाजा लगा लिया था कि ये अब दूसरी चाल है, इसकी जुबान खुलवाने की एक नई कोशिश। गालिबन वो इसके बारे में सब कुछ इस अंदाज में जान लेना चाहते थे और ये नई करवट इस सिलसिले की एक कड़ी है। चुनांचे उसने खुद को फौरन संभाल लिया। जनाबे वाला, दर हकीकत मैं इन सारे मामला से नावाकिफ हूँ। तवील अरसा वतन से दूर रहा और मुझे पता नहीं चल सका कि वतन किन हालात में है। आप खुद सोचें कि बेल्जियम से यहाँ तक का सफर कितना तवील और दुश्वार गुजार है। भला इस तरह मुझे यहाँ के हालात कैसे मालूम हो सकते हैं? सुनो, अगर तुम ये समझ रहे हो कि मैं चालाकी करके तुम्हारी जुबान खुलवाने की कोशिश कर रहा हूँ तो इस ख्याल को जहन से निकाल दो। मुझे इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं कि तुम कौन से ग्रुप से ताल्लुक रखते हो और किसके हक में हो। ताहम अगर यहाँ से निकलना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। दरअसल तुम अभी यहाँ नए आए हो और मुझे जिंदगी से इस कदर मायूस नजर नहीं आते जितने दूसरे लोग हैं। अगर तुम अपने वतन के लिए कुछ करना चाहते हो तो मैं खुलूस दिल से तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन आप तो, हाँ, बाजार में लोगों का हामी हूँ, लेकिन अंदरूनी तौर पर मेरे ज़हन में कुछ और है। अफसोस मैं तुम्हें इसकी तफसील नहीं बता सकता। हाँ, अगर तुम मेरे खुलूस का यकीन करना चाहो तो मेरे चंद अल्फाज इसके लिए काफ़ी होंगे। सुनो, मैं ये कोशिश करता हूँ कि तुम्हें एक आम आदमी करार देकर इन लोगों के जहन में ये बात बिठा दूँ कि वो तुम्हें अपने जासूस की हैसियत से विदेशिया के अंदरूनी इलाकों में भेज दें। वो लोग तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं। यकीनन वो ये मालूम करने में कामयाब हो जाएंगे कि तुम्हारा आबाई वतन यहाँ है या नहीं, तुम्हारा नाम टेरिकन है और तुम यहाँ से ताल्लुक़ रखते भी हो या नहीं। तुम्हारे बारे में वो मुफस्सल मालूमात हासिल कर रहे हैं। इसके बाद या तो वो तुम्हें छोड़ देंगे या अगर तुम बदस्तूर इनकी निगाहों में मशकूक रहे तो फिर तुम्हारी ही कैफियत उन लोगों की सी हो जाएगी। बेहतर यह है कि तुम इन लोगों से मुकम्मल ताउन का इजहार करो। मैं उन्हें अपनी रिपोर्ट में पेश करते हुए ये बात कह दूंगा कि तुम मलेशिया के बाशिंदे हो और अगर वो तुमसे कुछ काम लेना चाहते हैं तो तुम इसके लिए तैयार हो जाओगे। वो ये मालूम करना चाहेंगे कि मलेशिया में ज़ेरे ज़मीन सरगर्मियाँ जारी रखने वाले गिरोह कौन कौन से हैं और किस तरह काम कर रहे हैं। गोया वो तुम्हें अपना जासूस बनाकर तुम्हारे वतन भेज देंगे। लेकिन मैं इनके लिए सब कुछ कैसे कर सकूंगा? ये तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी होगी। बस इस तरह मैं तुम्हें यहाँ से निकल जाने का मौका दूंगा। तुम एक ऐसे ग्रुप के पास पहुँच सकते हो जो यहाँ से तुम्हें फरार करा सकता है। मैं उससे अच्छी तरह वाकिफ हूँ। वो तुम्हें बासानी फरार करा सकता है। ये अल्फाज जिंदगी की बाजी लगाकर मैंने तुमसे कह दिए हैं। अगर चाहो तो मेरे बारे में लोगों को बता देना। ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना कि मैं मौत के घाट उतार दिया जाऊंगा। अगर मुझे मेरी नेकियों का सिला मिलना है तो मिल जाएगा, मुझे इस पर कोई एतराज ना होगा। नुमान खान को इस शख्स के चेहरे पर सच्चाई नजर आती थी। चंद लम्हात उसकी तरफ देखता रहा। दिल अंदर से कह रहा था कि इस पर एतबार कर लिया जाए, इसकी बातें मान ली जाए, लेकिन अकल रोक रही थी और इस बात का इजहार कर रही थी कि उसे अपने शख्स से आगाह न किया जाए। अकल की बात नुमान खान ने तस्लीम की और आहिस्ता आहिस्ता कहने लगा, अगर आप मेरे ऊपर ये एहसान करना चाहते तो जरूर कर दें। मैं कम अज कम अपने वतन तो पहुंच जाऊंगा। इसके बाद हालात जो तकदीर में होंगे होंगे। ठीक है, मैं तुमसे ये बात कहलवा के खुशी महसूस नहीं करूंगा। दरअसल तुम अपने वतन के लिए जासूसी कर रहे हो। जाओ, फिलहाल इन लोगों के दरमियान बैठ जाओ। तुम्हारे लिए कोशिश करता हूँ। नुमान खान खामोशी से वापस पलटा और दूसरे लोगों के दरमियान जाकर बैठ गया। इसका ज़हन इस शख्स के बारे में उलझा हुआ था। शक्ल सूरत चेहरे मेरे से वो इन्हीं लोगों में से एक मालूम होता था, लेकिन उसके अल्फाज बहर सूरत देखना यह था कि हालात क्या करवट बदलते हैं।